प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या बताता है? इट शोज एन एक्शन दैट वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम. हु इज दिस? लेट मी सी. मुझे आप दिखते नहीं. Look at the board carefully. Look at the board carefully. Okay, present perfect continuous tenses show that an action that was started in the present and is still continuing in the, that was started in the past and is still continuing at the present time. Okay. See raha hu, see rahi hu, in a time is there. Okay, now I told you this thing that there is a difference between since and for. Okay, since and for में difference होता है. What is that difference, Yamini? What is the difference between since and for? Ma'am, since show. Ma'am, since is used. Ma'am, like since is used. Since is used like in a fixed time, and for is used for a period of time. Okay. Any other difference? Ma'am, like example, we can take since, ma'am, he is living in this city since 1994, and for example of for, he is living for here for 2 weeks. Okay, very good. Listen, beta, there is a difference between look since and for. Okay, what is the difference between since and for? Since refers to the exact time. Okay, point of time, exact time is given. I have been studying since आप बोल सकते since night, since morning. Okay, I have been playing since evening. Means exact time is there. जहाँ पर exact time दिया होता है that is called since, और जहाँ पर exact time is not given that is period of time. I have been living here for 2 days. Okay, अब 2 days कौन से 2 days होते हैं? That is not on Monday, Tuesday हो सकते हैं. It can be Wednesday, Thursday. It can be Friday, Saturday. So period of time that is for. Okay, and exact point of time. I have been living here since 2012. Exact time दे दिया since 2012. जब exact time is given that is period. Point of time means since. Point of time. Period of time means for. Okay, तो point of time के लिए जहाँ पे तुम्हें exact time दिया होगा then there you will use since. Exact time तुम्हें पता है since 2012, since morning, since evening. Exact time तुम्हें पता है that there you will use since, and जहाँ where you don't know the time there you will use for. Means period of time. I have been living here for 4 years, for 10 years. ठीक है, तो वहाँ भी you will use for. Wait a minute, some students are joining. Okay, now present perfect tenses, as I told you, these start with, ends with से रहा है, से रही हूँ, से रहा हूँ. Okay, you take out your grammar copies. Grammar copies. See your grammar copies. This is just a revision. See your grammar copies. We have done this thing earlier. Grammar copies, लो अपनी. 1 minute I'm giving to you. Go and bring your grammar copies. At that time. Good morning, ma'am. Okay, now. Good morning. Now I am taking your attendance. Okay, screenshots let me take. You please sit with your grammar copies. Vanshpal Gupta. Very good, Vanshpal Gupta. क्या बात होगी? क्यों तुम नाराज हो गए थे वंशपाल? मैम, since और for में क्या difference होता है? Who is this? Okay, and now I will tell you. Okay, since beta, since refers to a definite time. Okay, point of time. Since means if I say this thing कि I have been living here since 2012. अब तुम्हें exact time पता है? कौन सा? Since 2012 से मैं since 2012 से यहाँ पर रह रही हूँ. Time is given. Exact है. तुम्हें पता है. अब मैं बोल लूँ अगर suppose if I say कि I have been living here for 10 years, तो तुम्हें पता है कौन से 10 years हैं?
10 years 2010 to 2020 हो सकते हैं. 10 years can be 1990 to 2000. Okay, तो जहां पर तुम्हें exact time is not given, तुम्हें नहीं पता, वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है. 10 सालों से पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड है वो. There you will use for, or where exact time is there, since morning, since evening. Yes. मैम मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ, मैम मैं नेटवर्क Bete, we are just doing revision of present perfect continuous tenses, and I was asking about the difference between since and for. Since beginning of time period, okay, since beginning of time period, and for length of time period. ये तो मैं से याद कर सकते हो, length of time period. Okay, length of time, since तुमने याद करना beginning of time period, और उसमें तुमने for में क्या करेंगे, length of time, since morning, since evening, since night. Okay, for में for 2 days, for 2 years, for half an hour, for 1 hour, वो for के लिए हो गया. Now rule, affirmative के लिए फिर then I will give you 5 sentences, और for 5 sentences आपने फटाफट से बोलने हैं. Okay, 5 sentences I will give. Now see the rule: subject plus has been plus have been plus first form of verb plus ing plus other words. OW stands for other words. ये हमने किया है, so मैं इसे जल्दी ही करूंगी because it is a revision. Okay, तुम कर चुके हो इस चीज को. Subject plus has been plus have been plus first form of verb plus ing and OW, that is other words. ये बच्चे ना 2-2 मिनट के बाद आते हैं ना, बार-बार डिस्टर्बेंस. Okay, अब has been and have been, where to use has, where to use have. Vanshika 1192, where we shall use has been and where we shall use have been. ये बताओ. with he, she, it has been, and I with has been. Okay, good. With singular subject like he. Anuja, very good. Anuja, क्यों क्लास तुम नहीं लगाते हो? You tell me this thing. डेली में तुम्हारी एब्सेंट भेजी, तुम्हारी और वंशपाल की. Why you don't attend your classes, both of you, Anuja and this? अब आपकी मैम ने अभी अटेंडेंस मांग ली और अभी मेरी क्लास चली हुई है. अभी आपकी मैम ने अटेंडेंस के लिए मुझे मैसेज कर दिया. अभी क्लास इज गोइंग ऑन और मैंने क्लास स्टार्ट की है. अनुजा एंड वंशपाल गुप्ता, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप दोनों क्यों नहीं? अनुजा, टेल मी एनी जेन्युइन रीजन. रीजन शुड बी जेन्युइन. ओके, रीजन ठीक होना चाहिए. क्यों आपने क्लास नहीं लगाई? कितने दिन हो गए अनुजा? किससे मैंने डेट पूछनी थी? यू टेल मी दिस थिंग. मैंने डेट किससे पूछनी थी? अनुजा, मैं बताओ, किसे डेट पूछनी थी बोर्ड पर लिखने के लिए? Now with singular subject. Okay, singular means अकेला. Singular subject he, she, it, or any singular subject जो अकेला, one in number. With that you will use has been. With plural subjects like I, we, you, they, तो उनके साथ you will use have been. Okay, has been, have been. Okay, now let me give you some sentences. Okay, अब मैं तुम्हें sentences दूंगी. And you please change it into, first of all you change it into English. Okay, पहले आप English में change करोगे उसको. Yes बेटा. मैम has been में कौन से noun यूज होते हैं, कौन से word यूज होते हैं? बेटा singular subject. जैसे he, she, he means male, she means girl. Okay, it refers to time, weather, etc. animals. हम it use करते हैं. Singular के साथ तुम has been use करोगे. Plural के साथ you will use have been. Now let me give you some sentence. Okay, negative भी बता देती हूँ. Subject plus has, have, not been. I have not been. She has not been living here. ऐसा कुछ sentence हो सकता है, ठीक है? लेकिन आपने not कहाँ use करना है? You will use not, has, have or been. Not will come. Remember this thing. Not कहाँ आएगा? Has, have और been के in the middle. Interrogative, in interrogative has and have will come first. After that subject, then been, then first form of verb, then ing, then other words, and then question mark. Okay, same helping verb is used again and again
इन द नेगेटिव, सॉरी देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज हैव मैंने क्या किया, आई कुड मैंने इसको सब्जेक्ट से पहले रख दिया, ओके। अब ये हैज हैव सब्जेक्ट से पहले है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, आई हैव बीन, शी हैज बीन, एस इंटेरोगेटिव हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। ये रूल्स आपने किए थे एंड आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन दैट प्लीज रिवाइज योर रूल्स अगेन एंड अगेन, है ना। बोला था आपको रिवाइज करने के लिए कि रूल्स तो आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। ये मैंने ऐसे लिख लिया आपकी क्लास से पहले कि लेट अस डू वंस अगेन, पर रूल्स तुम्हें देखने पड़ेंगे, ओके। नाउ आई एम क्लियर है। Yes, बड़ी मुझे पता है ये लिखा होगा आपने पहले से, those who were regular in the class they must have written this. Now yes, ma'am. write down sentences. First sentence orally करते हैं in rough notebook. उसे ये हमने पहले भी किया है। उसे कल रात से बुखार आ रहा है, उसे कल रात से बुखार आ रहा है। And we have done in notebook. You have done that, so don't write, okay? बस हम just I will just ask. उसे कल रात से बुखार आ रहा है। Ma'am, yes. सुबह से सेकंड, सुबह से पक्षी चहचहा रहे हैं, सुबह से पक्षी चहचहा रहे हैं। Don't make a noise, be on mute mode. सुबह से पक्षी चहचहा रहे हैं। थर्ड, वह तीन, राइट ऑन, नॉट वह, दैट इज वे, वे मीन्स दे, वे 3 घंटे से, वे 3 घंटे से लूडो खेल रहे हैं, वे 3 घंटे से लूडो खेल रहे हैं, ओके। 3 सेंटेंसेस, वे 3 घंटे से लूडो खेल रहे हैं। वन मोर सेंटेंस, अच्छा राइट डाउन गाय, राइट डाउन गाय हमने किया, आई फॉरगॉट। गाय प्रातः से घास, Repeat again. ओके आई विल। गाय प्रातः से घास चर रही है। आई थिंक दिस सेंटेंस वी हैव नॉट डन अर्लियर ना। No, ma'am. गाय प्रातः से घास चर रही है, ओके। लास्ट सेंटेंस, अभिनव शर्मा, कैमरा शुड बी ऑन। राइट डाउन, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, okay. Now after 2 minutes I will start asking, okay. You have to change it into affirmative, negative, interrogative and then negative interrogative. Translate these sentences in English. Actually 1722 beta, whose mic is on? Whose mic is on? Let me see. Ayush? Ma'am, Yes. Ma'am, first. Vanshika 1192, have you written all the sentences? No, ma'am. How many sentences you have written in Hindi, beta? In Hindi. Hindi also. All the 5 sentences you have written in Hindi? No, Ayush ma'am. Parmar, Ayush Parmar, have you written? आपने लिखे आयुष? Yes, Ma'am, ma'am. Ayush, please read out those sentences. Read out those sentences. Little bit. उसे कल रात से आ रहा है। Write down, write down. सुबह से पक्षी चहचहा रहे हैं, वे 3 घंटे से खेल रहे हैं। गाय प्रातः से घास चर रही है, वह 2 घंटे
वो 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। ओके, नाउ ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में करो इसको चेंज। मैम चहचहाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेटा चर्प, CHIRP, चर्प। मैम हमने इन तीनों सेंटेंसों में बदलना है। नहीं, वो बेटा that thing I will ask. First of all, you translate these sentences only to affirmative. Okay, सिर्फ इसको affirmative में change करो। I'm done. Very good. I'm done. Okay, wait for 1 minute. Okay. मैम What about? Yes, Vanshpal. मैम मेरे को मैम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक और बार समझा दो। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ठीक है मैं समझा दूंगी, मैं 10 बार समझा दूंगी। यू टेल मी दिस थिंग, व्हाई यू वर रिमेन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, व्हाई यू वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास फॉर द लास्ट आई थिंक 4-5 days यू आर नॉट अटेंडिंग योर क्लासेस ना। आपने क्लास अटेंड नहीं की, क्यों नहीं की ये बताओ मुझे। रोज तुम्हारी एब्सेंट लगती है, क्यों? वंशपाल आप बता दो। ठीक है मैं करवा दूंगी वंशपाल, दिस इज माय ड्यूटी, मैं करवा दूंगी, बट यू प्लीज टेल मी तुम एब्सेंट क्यों थे। एक बता दो क्या था, बीमार थे, नेटवर्क इशू वाज देयर, मोबाइल के साथ प्रॉब्लम थी, कुछ तो था तो तुम एब्सेंट थे। बताओ। मैम स्कूल में आना है मैम, अब क्लासेस लगाने। स्कूल में आना, क्लास द स्कूल। Okay, now present perfect continuous tenses. See, subject. Vanshpan, look at the board. These sentences ends with से रहा है, से रही है, से रहा हूँ। Okay? से समझ गए वंशपाल? से रहा है, से रहा। अब तुम यहाँ वहां क्यों देख रहे हो वंशपाल? आप यहाँ वहां मत देखो, मेरी स्क्रीन में तुम ही हो सामने, तुम, वैष्णवी, अनन्या 2833 और यामिनी, आप सामने देखो। वंशपाल, subject plus has been, have been means slash is there means you have to choose one, एक choose करना है आपने, has been choose करना है या have been choose करना है। Okay, it depends on the subject. If the subject is singular, अगर subject अकेला है, if the subject is singular then you will use the has been. Okay, he, she, it, तो आप क्या करोगे has been, जैसे वंशपाल has been। ओके, वंशपाल अकेला है तो वंशपाल हैज बीन, वंशपाल और यामिनी 2 हो गए तो वंशपाल एंड यामिनी हैव बीन, प्लूरल, तब आप हैव बीन यूज करोगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी देयर, आफ्टर दैट आईएनजी विल बी देयर। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मींस सपोज डांस इज देयर तो डांसिंग बन जाएगा, राइट इज देयर राइटिंग बन जाएगा, चर्प इज देयर चर्पिंग बन जाएगा, ग्रेज इज देयर ग्रेजिंग बन जाएगा। Okay, drive is there, driving, it will become driving. Swim is there, तो swimming बन जाएगा। Okay, it means this ing and then other words. अब यहाँ मैं ऐसे करके बैठा हुआ है, क्या बोलूं? Okay, now translate the first sentence into English. वंशपाल अब आप करो translate. What is the first sentence? क्या first sentence है? Read करो। Read करो। मैम Let me ask. Yes. Shabnam Chaudhary. Okay, Devansh Saini is there. Shabnam Chaudhary, what is the first sentence? मैम in English or Hindi? Speak in Hindi first. मैम उसे कल रात से बुखार है। उसे कल रात से बुखार आ रहा है। ओके, उसे कल रात से बुखार आ रहा है, बिकॉज कॉन्टिन्यूस इज देयर तो ये एंड रहा रहे में ही होगा, बिकॉज कॉन्टिन्यूस इज देयर। उसे कल रात से बुखार आ रहा है। They have fever from night. उसे कल रात से बुखार आ रहा
है। हाँ, क्या बनाया तुमने इसका? सी द Ma'am, they रूल have- देखो क्या लिखा है सबसे पहले। दे कैसे किया? उसे है, उसे इज रिटर्न, उसे दे हुआ, उसे ही और शी, इट कैन बी ही और शी। दे तो होता है वे, दे मीन्स वे, तभी आपको बोला ट्रांसलेट करो, तुम्हें ट्रांसलेशन नहीं आती है। उसे मीन्स इट मे बी अ बॉय, इट मे बी अ गर्ल। चलो हमने लड़का ले, बॉय ले लिया। ही, शबनम, ही। अब ही सिंगुलर है कि प्लूरल? ही हैज a fever from he has fever from night. मैम चरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग। शबनम आपने कौन सा रूल लगाया? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। शबनम आपने ना ING यूज किया, ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, निदर यू यूज बीन, BEEN, बीन भी आपने यूज नहीं किया। दोबारा बोलो इसको। तो ये तो मुझे बेटा 10 डेज और लग जाएंगे इसको करवाते हुए। मैंने तो सिर्फ आज कराना है, कल मैंने नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज कराना है। आप जब मैंने ये रिवीजन करवाई थी, जब मैंने ये क्लास में कराया था, देन एट दैट टाइम जो बच्चे एब्सेंट थे, मैं क्या बट कहना इसे, मैंने तो यही बोला था कि कोई एब्सेंट नहीं रहेगा। अब आप एब्सेंट रहोगे तो मैं what should I say? Ayush Parmar 2086, first sentence. उसे कल रात से बुखार आ रहा है। He has been from yesterday to night. He has been suffering from fever कल रात से। Exact time is given. Exact time कल रात आपको दी है। अब रात से तो कोई भी रात हो सकती, कल रात से। He has been suffering with fever since night. Okay, since last night लिख दो तुम। He has been suffering with fever, या suffering from fever last night. He has been suffering with fever. He has been suffering from fever since last night. From the last. Yes, ma'am. He has been suffering from, देखो शबनम, he has been suffering, ING लगा दिया, from fever, exact time is given, exact time दिया तो आपने use since लगाया, since last night. Okay, rules के accordingly rule you have to translate. Okay, अक्षय चौधरी, इसका negative, उसे कल रात से बुखार आ रहा है। He has been suffering from fever since last night. उसे कल रात से बुखार नहीं आ रहा है। Now change it into negative. अक्षय चौधरी भी हिलाना पड़ता है, हिलाना, शेक करना पड़ता है। अक्षय चौधरी वेक अप। अक्षय चौधरी, ओके। सक्षम 1948, मैम चरने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग। सक्षम 1948, सक्षम 1948, हमें क्या? देवांश सैनी 3107, देवांश नेगेटिव में करो इसको चेंज। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप खुद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बोलो देवांश, व्हाट इज द नेक्स्ट सेंटेंस? मैम सुबह से पक्षी चहचहा रहे हैं। सुबह से पक्षी चहचहा रहे हैं। बहुत इजी है देवांश, इट इज वेरी इजी। सी द रूल एंड देन स्पीक आउट। सुबह से पक्षी चहचहा रहे हैं। फ्रॉम मॉर्निंग, कौन चहचहा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द सब्जेक्ट। कौन चहचहा रहा है? बर्ड, बर्ड्स। तो सब्जेक्ट कौन हुआ? कौन हुआ? व्हाट इज द सब्जेक्ट? birds. Then why you are using since morning? Since वगैरह लास्ट में लगता है। ओके, ING के बाद since for plus time आना था, वो I forgot to write, but आपने उस दिन लिखा हुआ है, वो मैंने लिखवाया था। तो बेटा कौन चहचहा रहा है? Who is chirping? birds, So birds are chirping. It means the action is done by birds. It means birds are the subject. Bird subject हुआ ना? तो birds बोलो क्या होगा फिर? मैं तो सिर खाली हो जाएगा, बट आपको समझ में नहीं आया
birds आगे अब birds 1 है कि 2 है कि 3 है? Ma'am, birds has not been chirping. अब मैं तुम्हें क्या बोलूं? What should I say to you? क्या what should I say? It means या तो मैंने ठीक नहीं पढ़ाया या तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ। मैं क्या what should I say? तुम्हें कितनी बार करवा के वही हाल है, 0 का 0 पे स्टैंड हो। वही करवाया इतनी बार। अब बर्ड्स के साथ तुम हैज क्यों लगा रहे हो? कितने बर्ड्स है? एक पक्षी चहचहा रहा है। कितने पक्षी हैं? पक्षी चहचहा रहे हैं। इट मीन्स सब्जेक्ट इज प्लूरल, रहे हैं। पक्षी चहचहा रहा है, मैंने ये बोला था। व्हाट डिड आई से? आई सेड पक्षी चहचहा रहे हैं। इट मीन्स पक्षी प्लूरल इन नंबर। बर्ड्स हैव बीन चर्पिंग, क्या मुश्किल है इसमें? बर्ड्स हैव बीन चर्पिंग, इसमें है मुश्किल? चर्प मैंने खुद बता दिया, चहचहाना को चर्प बोलते हैं। चरने को गाय घास चर रही है तो चरने को आप ग्रेज बोलते हो। ग्रेजिंग बन जाएगा, चर्पिंग बन जाएगा। Birds have been chirping. Bhavna Sharma, next sentence. Bhavna Sharma, next sentence. मैम मैंने थर्ड में लिखा, फिर फोर्थ। फोर्थ बताओ, फोर्थ क्या है? गाय प्रातः से घास चर रही है। गाय प्रातः से घास चर रही है, ओके। Birds have been chirping, मेरे ख्याल wait a minute. सुबह से पक्षी, ओके। Birds have been chirping सुबह, since morning. Birds have been chirping since morning. Exact time सुबह लिखा है। Yes, yes, Bhavna. What is the next sentence? गाय प्रातः से घास चर रही है। The cow has been grazing grass this morning. बेटे grazing grass मत यूज करो, सिर्फ grazing ठीक है। The cow has been grazing since morning. Okay? घास चरने को grazing ही बोलते हैं। The cow has been grazing since morning. Okay, good बेटा, good. Shivam Dhadwal. Shivam Dhadwal. Next sentence. What is the next sentence? वह 2 घंटे से खेल रहा है। वो 2 घंटे से He has been playing Ludo since 3. No. वो 2 घंटे से खेल रहा है। He since 2 hours. Very good बेटा Shivam. Very good. Clap for you. He has been playing Ludo for 2 hours. Very good, Shivam. Okay. Now, this was present perfect tense. Okay. Present perfect tense में listen to me. जिसको समझ में नहीं आया, again listen to me. After that, past perfect continuous tense I will tell. Or don't look here and there. Look at the board. Look at the board. सभी बच्चों को मैं स्क्रीन में देख रही हूँ। यहाँ वहां मत देखो, तुम्हें आ नहीं रहा है। फिर सेकेंड टाइम करवा के भी आप you are not able to give the answer. फिर यही है कि मैं ऐसे करवाऊं, बस हो गया, खत्म हो गया। क्यों 15 days अगर मैंने लगाए, अगर 15 days if I have spent on this tenses, present perfect continuous tense, still result should be some there ना, there should be some result, but आपको कोई result नहीं आया। Only 4-5 students are able to give the answer. सिर्फ 4-5 बच्चे हैं, they give the answer. Rest of the students are just doing time pass. They are sitting just like this और बस ये चला, यहाँ देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, हाँ यहाँ बातें हो रही है, वहां बातें हो रही हैं। जब आपको ये करवाया गया था तो मैंने 15 days लगाए थे और 15 days के बाद आपका रिजल्ट आज 0 आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने ठीक नहीं करवाया? महक 981 समझ में आता है? समझ में आता है? मेन पता है कहाँ प्रॉब्लम होती है? मेन होती है जो बच्चा इनरेगुलर है क्लास में, मेन वहां पे प्रॉब्लम होती है। जो बच्चा क्लास में रेगुलर है उसको थोड़ा बहुत समझ में आता ही आता है, बट जो बच्चा 1 दिन आएगा 4 दिन आएगा ही नहीं, उसको क्या समझ में आएगा? आज क्लास लगा ली, अटेंडेंस चली गई, प्रेजेंट है, ठीक है, 4 दिन क्लास में नहीं आएंगे, 5th डे आएंगे तो समझ में आएगा? कुछ समझ नहीं आएगा। चलो 1 दिन तुम्हें मजबूरी है, सपोज देयर इज एनी नीड कि तुम्हारा भाई बहन है, सिबलिंग इश्यूज देयर, तो ठीक है 1 दिन छोड़ के तो क्लास लगाओ। 4 दिन के बाद क्लास लगानी है, मैं रिवाइज करवा चुकी हूँ, कुछ आ नहीं रहा आप लोगों को,
पेपर में कैसे लिखोगे फिर? चीटिंग करके लिखोगे? पेपर में बुक ली और उतार के रख दिया। अगर वही ओरल टेस्ट में ले लूं फिर पेपर में तुम 30 आउट ऑफ 30, 28, 29 ले लोगे, वही मैं ओरल टेस्ट ले लूं फिर क्या दोगे तुम आंसर्स? आज मैंने ये पूछा, कुछ नहीं आया। और कल मैंने पास परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट करवाना, तब भी तुम्हारा यही हाल होगा, तो फिर क्यों लगानी है आपने क्लास? मत लगाया करो। और मैं भी नहीं करवाऊंगी, मैं भी विदाउट पेन करवाऊंगी फिर। बस मैं भी नेक्स्ट लेसन शुरू करवा दूंगी, द लास्ट लेसन, और अब मजे से करना। तुम्हें तब तक पढ़ना नहीं आएगा जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे, ये देख लो। बिल्कुल सो एम्बैरेसिंग इन योर क्लास ना। बहुत बुरी क्लास लगी मुझे, बहुत बुरी लगी। कुछ नहीं पता, पढ़ना ही नहीं है, यही है भाई, उतार के रख दिया कॉपी में, मैम ने करवा दिया और हमने लिख लिया, बस बात खत्म। नहीं करना, आगे रिवाइज ही नहीं करना तो कैसे होगा? एक दिन क्लास में आएंगे, 4 दिन छुट्टी करेंगे। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, कोई पता नहीं। एक दिन छुट्टी हो गई, ठीक है, सिबलिंग इश्यू है, एक फोन है तो कोई बात नहीं, एक दिन छुट्टी हो गई। एक 4-4 दिन तुम लोग क्लासेस ही नहीं लगाते हो, फिर बोले क्या आता नहीं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कैसे आएगा? नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आपको नहीं आता, यहाँ पर सब बोर्ड में लिखा होता, स्टिल तुम आंसर नहीं दे पाए, स्टिल तुम्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना नहीं आया। Next is past perfect continuous tense. In present perfect continuous tense, you have to take care about the subject. If the subject is singular, then has been. If the subject is plural, have been. Now, in past perfect continuous tense, there is not such type of any problem. Okay, directly had been is there. Write down the rule. लिखो rule. कुछ नहीं आता, कुछ नहीं, blank. Past perfect का rule देखो. Past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. See the rule and then you will translate those sentences. So first of all, affirmative. For affirmative, what you have to do, subject plus सब्जेक्ट लिखो। सब्जेक्ट कौन होता है? विच डू सम एक्शन। हैड बीन, इसमें सिर्फ हैड बीन यूज करना है, नो नीड टू टेक केयर ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी मींस डू, डूइंग, राइट, writing, swim, ing add किया swimming, dance, ing add, when I added ing it became dancing. First form of verb plus ing plus other words, okay, other words लिख दिया मैंने, plus since, for plus time, okay. Affirmative, subject plus had been plus first form of verb plus ing plus other words plus since, for, okay, plus time, okay. Now this is the rule of your affirmative sentence. First of all, I am giving you some sentences. करो उसको translate अब जल्दी से. First sentence, write down. Yes. Now these sentences are with से रहा था, से रहे थे, से रही थी. Okay, because past is there. Past is written. It means वो था, थे, थी होगा, बीत गया, पास्ट. प्रेजेंट था, then that was ending with से रहा है, से रही है, वहां पर ऐसा था. है was there because present था. Past है, रहा था, थी, this is there. Now write down first sentence. हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे. हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे. Yes अनुजा. अनुजा महक 981. हम सोमवार से, मंडे मीन्स हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे. महक We had been going to
वेरी गुड, वेरी गुड. नाउ लिसन बेटा, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे. ध्यान से सुनना. अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, देन आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड. देखो, जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं, दे प्लीज सी हियर. हम सोमवार, ओके, बोर्ड में देखो, हम सोमवार से स्कूल, अब देखना आपने, जा रहे थे. ओके, नाउ सी द रूल. व्हाट इज द रूल? सबसे पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट कौन होता है? विच डू सम एक्शन. कौन जा रहा था स्कूल? हम. हमको क्या बोलते हैं? वी. अब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, इसका कोई फर्क नहीं, डायरेक्ट हैड बीन यूज करो. वी हैड बीन. अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे थे? जाने का काम कर रहे थे. स्कूल इज अ नाउन, पर काम क्या कर रहे थे? क्या काम कर रहे थे? What action was going on? जाने का means go. Go आगे हम ing ऐड किया, going बन गया. Right now, we had been going. Other words, कहाँ जा रहे थे? We had been going to school. हम सोमवार, Monday, exact time is given since Monday. We had been going to school since Monday. अब ये सेंटेंस समझ में आया? कैसे मैंने ट्रांसलेट किया इसको इंग्लिश में? अनुजा समझ में आया? वंशपाल को? तो देखो बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखा करो. सब्जेक्ट कौन होता है? विच डू सम एक्शन. वी हैड बीन. अब वर्ब क्या कर रहे थे? व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, दैट इज टोल्ड बाय वर्ब. वर्ब बताता है कि सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है. तो आपने लगा दिया गो. गो के साथ आईएनजी लगा दो, बन गया गोइंग. कहाँ? टू स्कूल. सोमवार, exact time since Monday. Okay, now